हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आज हम देखने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जहां से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। ओके, तो सबसे पहली अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें तो वह है ग्रोथ। ओके, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल्स। ओके, जब सेल्स का नंबर बढ़ता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। देयर इज टू टर्मिनोलॉजी मोर। ओके, इसके लिए और दो टर्मिनोलॉजी है। एक होता है आपका हाइपरप्लेसिया और एक होता है हाइपरोट्रॉफी। ओके, दो टर्मिनोलॉजी है। व्हाट इज मीन बाय हाइपरप्लेसिया? हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ओके, इंक्रीज नंबर इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेसिया। ओके, देन व्हाट इज हाइपरोट्रॉफी? What is hypertrophy? Hypertrophy is increase in the size of cell. Okay, this is like increasing in the numbers. Okay, and this is increase in the size of cell is called as hypertrophy. ओके, ये दो टर्मिनोलॉजी मोस्टली यूज की जाती है और इसके बारे में, हाइपरप्लेसिया के बारे में आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ओके, तो आपको ये दो टर्मिनोलॉजी क्लियर है? ओके, तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। ओके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो इंक्रीज इन द हाइट। ओके, इंक्रीज हाइट। ओके, या फिर इंक्रीज वेट। दिस इज एन टू एग्जांपल ऑफ ग्रोथ। we can observe that there is the growth. Okay, there is the growth, we can observe that. Okay, then now what is development? Okay, what is development? अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इट इज द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, इट इज द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द ऑर्गन। ओके, so what is the development? It is physiological maturation of organ. Okay, organ या फिर हम बोल सकते हैं सिस्टम। Okay, what is development? It is the physiological maturation of organ or a system. Okay, it is also called as myelination. Okay, it is also called as myelination. Okay, now everyone knows that what is myelin? Myelin is it a sheath? It is a sheath which develop or transmit the nerve impulses. Okay, so that is myelination. Okay, what is myelination? It is the development of myelin sheath, that is called as myelination. Okay, जब बेबी न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर माइलिनेशन इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, बट अप टू 5 इयर्स, जब बच्चा 5 साल तक का हो जाता है, माइलिनेशन की जो प्रोसेस है वह अच्छे से डेवलप हो जाती है। दैट इज व्हाई द बच्चा स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस मोटर मूवमेंट एंड एंड्स अप विद फाइन मोटर मूवमेंट। ओके, क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज माइलिनेशन। ओके, तो डेवलपमेंट इट इज maturation of the organ or a system. Okay, maturation of organ or a system. What is growth then? Growth is the increase in the size of organ or a system. Okay, for example, जितना मेरा height था at the age of 1 year, it is increase day by day, it is increase, that is the growth. But when I was newborn, I was having the palmar मतलब gross motor. Okay, gross motor, then it converts into the fine motor is called as development. Okay, दो terminology clear है? Okay, now we will see the difference between growth and development. Okay, we will see the difference. So there is mainly 4 difference in the growth and development. 4 डिफरेंस है। ओके, तो अगर सबसे पहला देखा जाए,
सबसे पहला देखा जाए तो ग्रोथ इज फिजिकल फिनोमिना, ग्रोथ इज फिजिकल फिनोमिनन। ओके, ग्रोथ इज ए फिजिकल फिनोमिना। आप सभी को पता है ग्रोथ हमने बोल रहा है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, इट मींस इट इज अ फिजिकल, हमें फिजिकली दिखता है। ओके, वी कैन सी दैट देयर इज द इंक्रीज इन द ऑर्गन और a system. Okay, then it is limited period of time, growth is for limited period. Okay, limited period of time. Okay, growth is for limited period, it means after some years or at some point growth will stop. Okay, but the development will not stop at all. Okay, development is continuous process, it is a continuous process. Okay, development is continuous process. What is the growth? Growth is the physical phenomena, as here is the development is a physiological phenomena. Okay, physiological phenomena. Okay, physiological phenomena. Okay, what is the next difference? Next difference, it is the growth is measurable. Growth is measurable. For example, we can measure the height, we can measure the weight, we can measure the head circumference, we can measure the mid arm circumference. Okay, these all are measurable phenomena, but development cannot be measured. How you can measure that you convert into the this gross motor into the fine motor? But we can observe it, the measure, it is measurable, growth is measurable, whereas the development is observable. Okay, growth is measurable but the development is observable. Okay, then next one, it is an quantitative, it is an increase in the quantity of cell. Okay, what is the growth? Growth is increase in quantity of cell. Okay, increase quantity, we are saying that the growth is increase in the numbers, it means it increase in the quantity of cells. Okay, whereas in the development is increase in the quality of cell. Okay, increase quality. What is I am saying? A common example that I convert into the gross motor, from gross motor to the fine motor, that is increase my quality because of my myelination. Okay, so this is an increase in the quality of cell. सेल की क्वालिटी डेवलप होती है. ओके, सेल की क्वालिटी डेवलप होती है. ओके, दिस इज द simple difference between the growth and development. Okay, now we will see the characteristics of growth and development. What are the main basic characteristics of growth and development? Okay, characteristics of growth and development. Okay, characteristics of growth and development. तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात आती है तो सबसे पहला है इट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो. ओके, हेड टू टो, इट मींस that there will be the growth and development start from the head and it ends up to the toe. Okay, it is also called as cephalocaudal. Okay, what is called as cephalocaudal? Okay, cephalocaudal. Okay, what is the next characteristics? It is from central to periphery. Okay, from central to periphery. So it is also called as it is proximal to distal. Okay, growth start from my proximal end and ends up with distal end. फर्स्ट क्या होगा, जो proximal epiphysis जो बोन के हमारा देखिए
यह बोन हो गया, ओके, एक यह एक लॉन्ग बोन हो गया, ओके। सबसे पहले हमारा प्रॉक्सिमल, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड, ओके, एंड दिस इज डिस्टल एंड, ओके। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड की डेवलपमेंट होगा, देन द डिस्टल एंड, ओके। सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड का डेवलपमेंट होगा, देन द डिस्टल एंड, ओके। तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। अब देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समटाइम स्लोज, ओके। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट slows between preschool and school age, okay, preschool and school age, okay, and school age. Growth and development slows between schools and preschool age, okay. What it means that it does not mean that it is always slow, but it the rate of development and the growth and development it slows, okay, but it increase during first 5 year, okay, first 5 years। पहले 5 साल तक बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वह रैपिड होता है, इट रैपिड्स इन द फर्स्ट 5 years। पहले 5 साल तक बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वह रैपिड होता है, बट ड्यूरिंग प्री स्कूल एंड स्कूल एज, दैट इज फ्रॉम 6 to 12 years, growth and development slows down but not stop, okay, it is just a slows down, okay, slow होती है but not stop, okay, clear है यहां तक। now growth and development is coordinated, continuous, which says stop, it is a continuous, it is sequential, and it is stepwise process, okay। it means जैसे बच्चा डायरेक्टली स्टैंड अप या फिर चलने नहीं लगेगा, पहले बच्चा क्राउल करेगा, उसके बाद बच्चा स्टैंड विद सपोर्ट, देन बच्चा स्टैंड विदाउट सपोर्ट, देन ही विल स्टार्ट टू कीप ऑन स्टेपिंग, ओके, एक एक लेग आगे डालने का प्रयास करेगा, एंड देन ही विल लर्न टू द वॉकिंग, ओके। इट इज नॉट डायरेक्टली द बच्चा विल स्टार्ट वॉकिंग, ओके। तो देखिए आपको इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेट इज डिफरेंट, ओके, द रेट इज डिफरेंट, ओके। अब क्या इसका मतलब क्या है कि जैसे एक बच्चा 10 महीने में चलने लगेगा, ओके, बट एट द सेम टाइम दूसरा बच्चा जो कि 10 महीने का है वह अभी क्रॉल ही कर रहा है, द रेट इज डिफरेंस, दैट इज द रेट इज डिफरेंस। एक बच्चा 10 महीने में चलने लगेगा तो दूसरा बच्चा उसको 12 महीने लगेंगे या 14 महीने लगेंगे, द रेट इज डिफरेंट बट इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस। पहले बच्चा क्राउल करेगा तो क्राउल ही करेगा, डायरेक्ट चलने नहीं लगेगा, ओके, क्लियर है। दैट इज these are the characteristics of growth and development, ओके, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट वी विल सी द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कौन सी स्टेज हो सकती है, ओके, तो स्टेजेस कैन बी एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल, ओके, स्टेजेस कैन बी एंटीनेटल, ओके। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ओवुलेशन, ओके। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ओके। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लेकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स, ओके। ग्रोथ स्टॉप at some time but the development ends
at your last breath. ओके, इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ग्रोथ कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद रुक जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट एंड्स एट योर लास्ट ब्रेथ। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ वी विल सी द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो स्टेजेस दो प्रकार की हमने बोला है, एक होती है एंटीनेटल, ओके, एंड दिस इज पोस्टनेटल स्टेजेस। ओके, पोस्टनेटल स्टेजेस। नाउ व्हाट इज एंटीनेटल स्टेजेस? कब से एंटीनेटल? हमने बोला है फर्टिलाइजेशन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको तीन भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका जाइगोटिक स्टेज। ओके, अब जाइगोट किसको कहते हैं? आपको आंसर आना चाहिए। जाइगोट किसको कहते हैं? कमेंट कर दीजिए। ओके, जाइगोटिक स्टेज। दूसरी आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। Okay, and the third one is fetal stage. Okay, fetal stage. This is some 3 stages of antenatal growth and development. Okay, antenatal period में 3 stages है, एक जाइगोटिक, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्टेज। ओके, कब हम बोलते हैं जाइगोटिक स्टेज कब बोलते हैं हम? फर्स्ट 14 डेज। ओके, फर्स्ट 14 डेज को हम क्या कहते हैं? जब से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके 14 डेज तक जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड दिस वाज योर कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू। ओके, दिस वाज योर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम एमसीक्यू होता था। ओके, दिस इज जाइगोटिक स्टेज, जो कि फर्स्ट 14 डेज या फिर 0 to 2 वीक्स हम इसको कहते हैं। ओके, 0 to 2 वीक्स हम इसको कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज कब स्टार्ट होती है? ओके, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज आपका 14 डेज या फिर 2 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक। ओके, 2 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेज। दिस आल्सो कैन बी आस्क्ड इनटू योर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम। Okay, what is fetal stage? From 8 weeks till birth. Okay, from 8 weeks till birth is called as fetal stage of development. Okay, तो देखिए एंटीनेटल पीरियड में जाइगोटिक स्टेज होती है, जो कि आपकी फर्स्ट 2 वीक्स तक, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो कि 2 से 8 वीक तक, एंड फीटल स्टेज जो कि 8 वीक से लेकर टिल बर्थ तक होती है। ओके, अब पोस्टनेटल पीरियड में आपका आता है सबसे पहले नियोनेट। ओके, सबसे पहले आता है नियोनेट। अब नियोनेट को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक होता है अर्ली नियोनेट, दूसरा होता है लेट नियोनेट। ओके, एक होता है अर्ली नियोनेट, दूसरा होता है लेट नियोनेट। अब ये क्या चीज चल रहा है? ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हम देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस, तो आपको ये 3 चीजें एंटीनेटल स्टेज में, और पोस्टनेटल जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा उसको हमने स्टेजेस में डिवाइड किया है। ओके, तो नियोनेटल पीरियड में अर्ली नियोनेट जो कि 0 to 7 डेज का होता है। ओके, 0 to 7 डेज का होता है, उसको क्या कहते हैं हम? अर्ली नियोनेट। ओके, और 8 डेज से लेकर 28 डेज का जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेट नियोनेट। ओके, 8 डेज से लेकर 28 डेज तक जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेट नियोनेट। ओके, देन दिस नियोनेट, then after 28 days to 1 year, okay, 28 days to 1 year is called as infant. Okay, 28 days, okay, after 28 days to 1 year, 1 year तक इसको हम क्या कहते हैं?
इन्फंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फंट। ओके, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इन्फंट के बाद आता है आपका टॉडलर। ओके, इन्फंट के बाद आता है टॉडलर। टॉडलर जो कि 1 to 3 इयर्स तक होता है, 1 to 3 इयर्स तक होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्री स्कूल, प्री स्कूल। ओके, जो कि प्री स्कूल आपका 3 to 6 इयर्स तक होता है, 3 to 6 इयर्स। ओके, देन आता है स्कूल एज। स्कूल एज जो होता है 6 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक, 12 इयर्स तक, 6 से 12 इयर्स तक। ओके, नाउ देयर इज अडोलसेंट। ओके, अडोलसेंट जो कि होता है आपका 12 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक। ओके, 18 इयर्स तक। ओके, 18 इयर्स तक। क्लियर है? these are the developmental stages which is mostly focused। ओके, अगर आपको एक सिंपल जनरल क्वेश्चन पूछा गया कि पेडियाट्रिक नर्सिंग में कितने साल तक के बच्चे को ऐड किया जाता है, ओके, तो आपका आंसर 16 या फिर 18 एज तक। ओके, 16 या फिर 18 एज तक के बच्चे पीडियाट्रिक नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक के अंडर आते हैं। ओके, आफ्टर 18 दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पीडियाट्रिक पेशेंट्स। ओके, तो दिस इज आल्सो कैन बी आस्क्ड इनटू योर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम। ओके, क्लियर है? यहां तक हमने देखा है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस हमने देखी एंटीनेटल, देन पोस्टनेटल स्टेजेस। एंटीनेटल में हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, जाइगोटिक, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्टेज। ओके, पोस्टनेटल में हमने इसको नियोनेट जो कि अर्ली और लेट होगा, इन्फंट 28 डेज से 1 ईयर तक, टॉडलर 1 to 3 ईयर, प्री स्कूल 3 to 6 ईयर एंड स्कूल 6 to 12 ईयर एंड अडल्ट इज फ्रॉम 12 इयर्स to 18 इयर्स। ओके, तो ये स्टेजेस के हिसाब से, ओके, जब भी आप पीडियाट्रिक सीखोगे इसके बाद या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीखोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज हम सीखेंगे। ओके, इस स्टेजेस के हिसाब से हम सीखेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग growth and development। okay, there are so many factors which can affect the growth and development। okay, there are so many factors। okay, but we will see the major factors which affect the growth and development। factors affecting growth and development। okay, factors affecting growth and development, there are 2 factors। again there are 2 factors, एक है एंटीनेटल फैक्टर और दूसरा पोस्टनेटल फैक्टर। बिफोर प्रेगनेंसी, ओके, बिफोर प्रेगनेंसी कौन से फैक्टर्स कैन बी अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, and after the birth of the baby what are the factors which affect the growth and development, that is called as postnatal factor। okay, now the first factor in the antenatal period। okay, during pregnancy अगर मदर स्मोकिंग करती है, ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर स्मोकिंग करती है तो क्या होता है, मदर की बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जो हमारी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करता है। ओके, रिड्यूस करता है, इसका मतलब जो हमारी प्लासेंटा है वह क्या करेगी, लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रिसीव करेगी। ओके, प्लासेंटा को लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, क्या हो सकता है, देयर विल बी द हाइपर प्लासेंटेशन। ओके, ए टर्मिनोलॉजी कॉल्ड हाइपर प्लासेंटेशन। ओके, और अगर हाइपर प्लासेंटेशन होता है, क्यों होता है हाइपर प्लासेंटेशन, क्योंकि हमारी प्लासेंटा को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम मिल रहा है,
तो प्लासेंटा क्या करेगा, वाइड रेंज में ये जो हमारा यूट्रस है, ये जो हमारा यूट्रस है, इसको हमें पता है पोस्टीरियर वॉल में प्लासेंटा अटैच है, ओके, बॉडी के अंदर। तो यह हमें 15 टू नॉर्मली 15 टू 20 सेंटीमीटर तक यह सरफेस एरिया कवर करती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो यह ऑक्सीजन ढूंढने के लिए और दूर तक चली जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरप्लासेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, हाइपरप्लासेंटेशन। ओके, तो दिस इज ए फैक्टर फॉर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट फैक्टर अगर हम बात करें तो देयर इज एन अल्कोहल। हाउ अल्कोहल अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब मदर अल्कोहल का कंजम्पशन करती है, ओके, जब मदर अल्कोहल का कंजम्पशन करती है तो बेबी का इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस होता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो अगर मदर टेरेटोजेनिक ड्रग का इस्तेमाल करती हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से टेरेटोजेनिक ड्रग्स है, आप इसके नाम लिस्ट कर लीजिए, और इस ड्रग से क्या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है। यह आपकी एक्सरसाइज है बच्चों कि मैं आपको नाम बता दूंगा, आपको उससे ढूंढना है कि व्हाट आर द कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज ऑकर बाय दिस ड्रग्स। ओके, अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन ड्रग का सेवन किया जाए तो कुछ बच्चे, जो पैदा होने वाला बच्चा होगा उसके अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम, ओके, लिथियम, देन फिनाइटोइन, या फिर और एक सोडियम वॉल्प्रोइड, these are most common drugs used. If used, then it can cause the congenital malformation in the baby. ओके, अब यह कौन से congenital malformation करते हैं यह आपको ढूंढना है, that is your exercise. ओके, teratogenic drugs. Okay, these all drugs are called as teratogenic drugs which can affect to the growing fetus. ओके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है? सॉरी। देन अगर मदर के अंदर डिक्रीज फोलिक एसिड की लेवल, ओके, अगर फोलिक एसिड मदर के अंदर कम होगा, अगर मदर के अंदर फोलिक एसिड कम होगा तो बच्चे में क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंड दिस इज आल्सो एन कॉमन एग्जाम एमसीक्यू। ओके, दिस इज आल्सो ए कॉमन एग्जाम एमसीक्यू। आपको यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगर मदर के अंदर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो बच्चे में क्या डेवलप होगा, एंड दैट इज द फैक्टर कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर मदर के अंदर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो बच्चे में क्या डेवलप हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, अगर मदर मालनरिश है, ओके, अगर मदर मालनरिश मदर है तो देखिए बच्चा क्या हो सकता है, बच्चा लो बर्थ वेट डिलीवर हो सकता है, लो बर्थ वेट, क्योंकि मदर में ही न्यूट्रिशन की लेवल कम है, माल नरिश है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी नहीं है, प्रोटीन की कमी है, देन द बच्चा विल बी डिलीवर एज malnourished children. Okay, as malnourished children. Okay, these all factors are clear है, नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट हम फैक्टर्स देखते हैं। अगर मदर के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी हो, ओके, अगर मदर के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी हो, ओके, डेफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ओके, आयोडीन क्या काम करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ आयोडीन। ओके, अगर आयोडीन को समझना है हमें तो देखिए आयोडीन क्या करता है, थायराइड हार्मोन बनाता है। ओके, थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। ओके, अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी
ओके, या फिर थायराइड हार्मोन क्या काम करता है, तो इट हेल्प्स इन बोन एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ओके, बोन एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ओके। और अगर मदर के अंदर आयोडीन की ही कमी होगी तो मदर थायराइड हार्मोन से भी कम होगी, ओके। अगर थायराइड हार्मोन कम होगा तो बोन एंड ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, ओके। तो दैट इज व्हाई अगर मदर आयोडीन से कम है तो बच्चा लो आईक्यू वाला डेवलप होता है, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन से डेवलप होता है, ओके। मेंटली माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में देखने को मिलता है। मदर विथ लो आयोडीन डेफिशिएंसी इज डेवलप विथ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ओके, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में देखने को मिलता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अगर मैटरनल कोई स्ट्रेस या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, ओके, सो सी द बच्चों, देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम which can affect the growth and development, okay। अगर मदर में स्ट्रेस और एंजाइटी होगी, ओके, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी होगी प्रेगनेंसी के दौरान, देन द बच्चा कैन बी डिलीवर एज अ प्रीमेच्योर, ओके, बच्चा कैन बी ए प्रीमेच्योर, ओके, क्योंकि देखिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है which can affect the growth and development, okay, and this is an example, okay। अगर मदर में स्ट्रेस एंड एंजाइटी होगी then बच्चा can be delivered as a premature baby, okay। then अगर मदर में कोई इन्फेक्शंस होंगे, ओके, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शंस होंगे लाइक आपको बताना है टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। व्हाट इज दिस टॉर्च इन्फेक्शन? Torch is nothing but a common group of infections present during the pregnancy, okay। These are the common infections present during the pregnancy, okay। तो इस यहां से आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, टॉर्च के लिए एक अलग से क्लास लेंगे, छोटी सी क्लास होगी लेकिन इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टी का मतलब क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, okay, toxoplasmosis। O for other like syphilis, okay। R for rubella, okay। C for cytomegalovirus, okay। and H for herpes simplex, okay। These are some common infections present during the pregnancy, okay। These are some common infections present during pregnancy, okay। अगर यह infections मदर के अंदर होंगे which can affect for the growth and development, okay, clear है। then next, अगर मदर के अंदर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होगी, ओके, मदर के अंदर अगर कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होगी, ओके। अब क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के बारे में देखते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कुछ नॉर्मल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, हमारे बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। कितना होता है क्रोमोसोम्स, 46 इन नंबर्स या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। तो जितने क्रोमोसोम्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स, तो 46 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगी, लेकिन हम इसमें से मेजर डिसऑर्डर देखेंगे, ओके। अगर मदर के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ओके, तो बच्चा कैन बी डेवलप विथ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, ओके। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं हम डाउन सिंड्रोम, ओके, डाउन सिंड्रोम, ओके। यह डाउन सिंड्रोम क्या होता है आपको नोट करना है, ओके। जो मैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी आज आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको नोट करना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो देखिए डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, इट इज ट्राइसोमी ऑफ
21 number of chromosome. Okay, ट्राइसोमी ऑफ 21. ओके, 21 क्रोमोसोम पे XXY ऐसे 3 क्रोमोसोम होंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम. ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, नेक्स्ट आता है आपका टर्नर सिंड्रोम. ओके, टर्नर सिंड्रोम. ओके, टर्नर सिंड्रोम ये जो कॉमन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है यह आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. प्लीज नोट इट डाउन. व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? इट इज द मिसिंग क्रोमोसोम. इट इज द मिसिंग क्रोमोसोम ऑफ 45 इन नंबर. ओके, जो 45th क्रोमोसोम होता है मिसिंग क्रोमोसोम. ओके, मिसिंग जो 45th पे क्या होगा? ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा. इसके साथ जो हमने बोलते हैं पेयर होता है तो दूसरा पेयर इसका मिस होता है. दैट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम. दैट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम. थर्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम देखते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. ओके, क्या कहते हैं इसको? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. क्लिनफिल्टर सिंड्रोम. What is Klinefelter syndrome? What is Klinefelter syndrome? It is the trisomy of 44 and 47 chromosome. Okay, trisomy of 44 and 47 chromosome. That is XXY या फिर ऐसे होगा. ठीक है, तो this is the Klinefelter syndrome. Trisomy of 44 and 47 chromosome. ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं पेटाऑस सिंड्रोम. ओके, पेटाऑस सिंड्रोम. प्लीज नोट इट डाउन. ये इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो कि कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, पेटाऑस सिंड्रोम. ओके, पेटाऑस सिंड्रोम. ओके, पेटाऑस सिंड्रोम. इट इज द ट्राइसोमी. इट इज द ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम. ओके, ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम. 13th इसका मतलब 3 क्रोमोसोम होंगे. जो 13th नंबर का क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर 3 आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे. ओके, क्लियर है? पेटाऑस सिंड्रोम. नेक्स्ट हम देखते हैं. इतना लिख लिया है. नेक्स्ट हम देखेंगे Kraikido syndrome. Okay, Kraikido syndrome. What is Kraikido syndrome? Kraikido syndrome. Kraikido syndrome. What is this Kraikido syndrome? Kraikido syndrome, it is the trisomy of the 5th chromosome. Okay, trisomy of 5th chromosome. 5th chromosome. ट्राइसोमी ऑफ 5th क्रोमोसोम. इसका मतलब 5th जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर आपको 3 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे. ठीक है, 5th जो पेयर होगी उसके ऊपर आपको 3 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे. दैट इज कॉल्ड एज क्राइकिडो सिंड्रोम. ओके, नेक्स्ट इज पॉल्स सिंड्रोम. ओके, पॉल्स सिंड्रोम. पॉल्स सिंड्रोम. Now, what is Pall's syndrome? It is the trisomy. Oh, sorry, it is not trisomy. It is the defected chromosome of 4th number. Okay, 4th. Okay, defected chromosome of 4th. Okay, जो 4th नंबर का क्रोमोसोम होगा उसमें कुछ डिफेक्ट होगा. That is called as Pall's syndrome. That is called as Pall's सिंड्रोम. ओके, तो यह कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गई. ओके, यह कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गई. ओके, अब अगर मदर के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स है. ओके, तो इतना तक हमने अभी देखा मैटरनल के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. ओके, अगर कुछ मदर के अंदर डिसऑर्डर्स है मैटरनल डिसऑर्डर्स लाइक इनसफिशिएंसी ऑफ यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी. अभी जो हमने
जो बोला था स्मोकिंग के अंदर इनसफिशियंसी, जो स्मोकिंग के अंदर हमने बोला था कि अगर मदर स्मोकिंग करती है तो देयर इज लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द मैटरनल ब्लड। अगर लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मैटरनल ब्लड के अंदर होता है तो यह जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम कम और प्लासेंटा के अंदर भी होगा। तो प्लासेंटा क्या करेगी, वाइड एरिया में स्प्रेड होने का प्रयास करेगी, दैट इज कॉल्ड एज यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी। या फिर जो ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन होना था, ओके, जो ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन होना था प्रॉपरली, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज यूटेरोप्लासेंटल इनसफिशियंसी। ओके, देन अगर मदर के अंदर कॉर्ड प्रोलैप्स की डिसऑर्डर है, कॉर्ड प्रोलैप्स की डिसऑर्डर है। अब देखिए, जब कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो हम क्या करते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल डिलीवरी करने का प्रयास करते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल डिलीवरी करने का प्रयास करते हैं। अगर हम अर्ली डिलीवरी करेंगे तो बेबी प्रीमैच्योर डेवलप होगा, प्रीमैच्योर होगा तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगर मदर के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, ओके, जैसे प्रीक्लाम्सिया हो गया, इक्लाम्सिया हो गया, और अगर मदर जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस है, ओके, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को डायबिटीज मलाइटस डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस व्हिच कैन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, अगर मदर के अंदर एनीमिया है, अगर मदर के अंदर एनीमिया है, ओके, तो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो कि हमारे हीम और ग्लोबिन का कॉम्बिनेशन होता है, हीम और ग्लोबिन का कॉम्बिनेशन होता है, और वह हीम क्या होता है, दैट इज एन आयरन पार्ट ऑफ hemoglobin, that is an iron part of hemoglobin, and what is the globin is the protein part of hemoglobin। okay, हीम और ग्लोबिन का कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ओके, तो देखो बच्चों, एक हीमोग्लोबिन, ओके, एक हीमोग्लोबिन आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है, साथ ही साथ 4 आयरन के मॉलिक्यूल उसके ऊपर होते हैं। ओके, हीम और ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम है आपका आयरन और ग्लोबिन है आपका प्रोटीन। ओके, तो एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 आयंस होते हैं और क्या होता है, और 4 ऑक्सीजन होते हैं। ओके, 4 ऑक्सीजन होते हैं। दिस इज ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इनटू योर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम्स। ओके, then these are some maternal या फिर antenatal disorders in the mother। okay, antenatal disorders। okay, now we will see the postnatal factors। postnatal factors क्या क्या हो सकते हैं postnatal factors, जैसे कि अगर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर पोस्टनेटल में अगर बच्चा एक लो इकोनॉमिक स्टेटस की फैमिली में डिलीवर हो गया, ओके, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर होगा, ओके, तो बच्चे का जो परवरिश होगा उसमें दिक्कत आ जाएगा एंड बच्चा विल अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, अगर डाइवोर्स फैमिली है, ओके, डाइवोर्स फैमिली है, ओके, अगर हम और क्या बोल सकते हैं, पुअर फैमिली है तो, ओके, पुअर फैमिली है तो अगर फैमिली के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है तो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर फैमिली के अंदर ज्यादा होंगे तो, ओके, अगर मदर का पोस्टनेटल पीरियड के अंदर मदर का या फिर बेबी का पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा तो, ओके, बच्चे का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रॉपर नहीं होगा, ओके, अगर स्कूल एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, तो दिस वाज अबाउट ए स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास लेंदी होने वाली है, ओके, क्लास लेंदी होने वाली है, इसीलिए हमने इसको 3 भागों में
डिवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हाउ टू असेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्चुअल असेसमेंट हम देखेंगे। ओके, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.